फूड एम्पायर बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन, आई कैन सी इट, बिजनेस टॉक एसएमई कॉन्क्लेव आईसीसीआर में होने वाला है, एंड आई फाइंड द पैनलिस्ट्स very well chosen. गुरिंजिम रे फ्रॉम Spottle.ai एंड Wavo AI, उन्होंने फर्स्ट ये प्रपोजल दी थी मुझे कि एक AI सेशन किया जाए. So I would suggest everyone, who is in business or a startup to go and attend. तो दादा अब आते हैं कुछ रैपिड फायर राउंड में, वन लाइनर आंसर देना है. I am very bad at it. मैं सोच के बताने वाला आदमी. कोई नहीं. वन वर्ड दैट डिफाइंस भोजोहारी मन्ना. Consistent. कोलकाता सीक्रेट फूड और फाइन डाइन बंगाली क्विजीन. कोलकाता's स्ट्रीट फूड हाँ. और फाइन डाइन बंगाली क्विजीन, दोनों में से कौन सा चुनेंगे? देखिए, फाइन डाइन is a very open-ended thing. It can be anything. It can be this big and this good or this good. But street food has got a typical standard. Every city has its own standards. Yeah. आप पुचका ले लो, फुल्का ले लो, जो भी गोलगप्पा बोलो या पुचका बुलाओ, every city has its own standards. तो स्ट्रीट फूड आई गेस. So street food I would prefer. योर पर्सनल कंफर्ट फूड डिश. Nothing specific. Because I enjoy any kind of food, But and if it has to be one, then it has to be one. yeah. Very tough to tell you. What do I tell you? I can't tell you. आप पूछोगे तो my childhood went into rolls. Oh, yeah. फेवरेट फॉर कैलकाटा एंड बंगाल. जी. Best. I actually early mentoring जिसको कहा जाता है to build a brand. Yeah. My background, मैं अभी देखता हूँ जो कुछ भी किया हूँ जिंदगी में वो सारा चेन बना ब्रांड्स की. भोजोरी मन्ना became a chain, मछली पापा फ्राइज became a chain, और मेरे नेफ्यू के लिए हमने एक अर्ली मेंटरिंग किया था to set up the business and name the brand. It is 34 Chowring Lane in Delhi and NCR Okay. with 82 plus stores today. Super. So I have grown up on rolls and thumbs up. Best Kolkata thing. में. The toughest city outside West Bengal to please food wise. I think the southern cities. Okay. I have experience with Bangalore. जो लोग आके कहते थे कि your food is too sweet, and I had to tell them I find yours very sour. One piece of advice to young foodpreneurs: innovation or consistency. Great. So we'll come to the rapid fire round right now. So business के लिए सबसे जरूरी क्या है? Great product या great location? Both. Okay. फूड एम्पायर बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? Patience. Observation. Observation. You observe bigger success stories and try and implement them in your business. You learn from Yeah. bigger, larger successes. Correct. Never look at your own success as the Yeah. largest. It's not. It is minuscule. Definitely. Yeah. So एक रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? खराब सर्विस या एवरेज खाना? सर्विस बढ़िया हो, मैं घुमा के जरा बोल रहा हूँ. Okay. सर्विस अगर अच्छा हो तो एवरेज खाना भी सुपीरियर लगता है. And the I agree best to that. खाना Super. brought Yeah. to you on the table with very bad attitude Yeah. will go down as very bad food. Very nice. One ingredient a Bengali chef can never skip. Can never. Skip. मतलब वो तो खाना पे होना ही चाहिए. A Bengali एक chef. ingredient जो बंगाली शेफ कभी मिस नहीं करता. Yeah. Sugar. Smart Bengalis answer. have a sweet mouth. Okay. इतनी मिठाई की दुकान और कहीं नहीं है. Yeah. Right. बंगाल जैसा तो इतना कहीं नहीं है कि बाहर से राजस्थान से हो या दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, लोग कलकत्ता में ही दुकान खोलते हैं. करेक्ट. और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है. जी. केसीदास. यहाँ पे पहले बिजनेस फैलाया जाता है, उसके बाद ब्रांड रिकॉग्निशन आती है, उसके बाद बाहर चला जाता है. Yeah.
So, Dada, to save a failing restaurant, what should we do to cut your cost or change the menu? What will you suggest? Cut your costs first. Yeah. If workout Menu नहीं आपका, होता है तो you may like my food, yeah. but you have suddenly stopped ordering because the prices we are unable to hold. Yeah. So if we come back to a point जहाँ पे आपका affordability is met and you do not feel we are expensive, तो चलेगा खाना, वही खाना चल सकता है. But Yeah. वही खाना according to me reaches a stage जहाँ पे थोड़ा सा रुकावट सा लगता है. So उसमें you have to innovate. Innovation. Yes. Innovation. Affordability, consistency Yeah. and innovation साथ में चलना पड़ेगा. Three things, hand three in main hand. things have to be there. That's according to me. There are bigger experts in the field. अगर आप वापस से आज 20 साल के होते तो क्या करते सर? ये बिजनेस नहीं करते तो? ये नहीं करते तो ये छोड़ के If food business नहीं करते तो food was not. क्या और startup आप कर रहे था? I don't have an answer. Okay, दादा एक और क्वेश्चन है. कॉर्पोरेट लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप क्या आपके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है? Corporate teaches you discipline Yeah. and your business life teaches you hard work. Super. So from this is 2026. So it's been 23 years of Bhojahari Manna. So what do you think? Customers वापस क्यों आते हैं? अगर भोजोहरी मन्ना का ब्रांड नेम के लिए आते हैं या उसके टेस्ट के लिए आते हैं? You see, the brand name will always count, and organic brand names, not taken out of AI. Yeah. हाँ, AI से brand name आप पूछोगे तो बहुत सारा आ जाता है. But you know, a name like Bhojori Manna, it has a human connect. It has emotion. It does not describe your business. It links you with your childhood memories. Okay. Bhojori Manna was a title of a song rendered by the legendary Manna De for a movie which the Bengali masses, you know, related with. Relatability बहुत बड़ी factor होती है. When Bhojori Manna happened, every other Bengali restaurant in the city faced a problem Yeah. because people queued up for more than emotion than the food. First they came for emotion, then they liked the food, then they came back. So the brand Banwana, if it has an emotion, your retention of clients become far more easier. Correct. और ये भोजरी मन्ना की ब्रांडिंग का, you know, the naming of the restaurant की credits मेरी नहीं है. Okay. It was Siddharth Chatterjee. Wow. He suggested this name. We were all writing down all names. He suggested the name. मैं जल्दी में था because मेरा restaurant सब बंद हो गया था. It is so genuine of you of saying that on camera, that giving the people credit, whoever is Absolutely. responsible for that. Nothing happens alone. Super. In my life, in any project I have worked, I have always built small teams around me. भोजरी मन्ना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था because 180 स्क्वायर फीट में 5 पार्टनर की जरूरत नहीं थी. आज मैं सोचता हूँ. But खैर, that was written. That was the blueprint sent from the top, and it worked. So we'll just end this with the last question. One word that describes the future of Bhojori Manna. It's in the hands of the new generation. Okay. You know, they have taken up something. It's a huge responsibility. Yeah, we And if crave you for the cannot taste. Please relate keep it alive. कि कितना blood, sweat and tears have gone into building this, because the new generation works on phones and software. Correct. We worked on hardware, which is inside us. Yeah. तो दादा अब हम आते हैं फेज 2 में. अचीरा जी भी हमारे साथ है, फाउंडर ऑफ बिस्टॉक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, और हमारा भी ईवीओ कनेक्ट बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. तो हम लोग क्या है कि आगे जाके एआई समिट वेस्ट बंगाल 2026 कराने का प्लान कर रहे हैं. अभी एक कॉन्क्लेव है फॉर द एसएमई सेक्टर ऑफ वेस्ट बंगाल,
और जो कि हमारा मिशन है, हम लोग भारत 10x मूवमेंट में है, हमारे भारत को 10 गुना जीडीपी में अप ले जाए नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। और हम आशा करते हैं कि बंगाल नंबर 1 स्टेट बनेगा, जो कि ब्रिटिश राज में भी हुआ करता था। एंड बंगाल हैव ऑल द कल्चर, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, फायर भी है तो। जो ये कॉन्क्लेव हो रहा है 27 जून, ये किस लिए ज़रूरी है कोलकाता के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वेस्ट बंगाल के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और क्या किकस्टार्ट ये मिलेगा हमारे, क्या बूस्ट मिलेगा लोगों को इससे? थोड़ा इस पे कुछ बोलेंगे अचीरा जी, आप भी और दादा आप भी इस पे कुछ? अशिरा जी हैज सेंट मी ये प्रोमो का, you know, I have it on my phone. I can see it. Business Talk SME Conclave, ICCR में होने वाला है. And I find the panelists very well chosen. And the main feature of this show or program or conclave, whatever you call it, will certainly be Mr. Devashish Sen. His contribution to building Newtown as a smart city, we have all seen. Yes. How good or bad. Today, if you compare that with Kolkata, you will know whether he has done a great job or a fantastic job. It's hats off to him, and I'm sure whoever is attending this, I would actually encourage the youngsters to go and fill up the auditorium and learn from him how to go about AI, because he comes through on the social media today as a person who is obsessed with AI because he understands the future of India. He knows the connectivity with the GDP growth and the 10 years hence, and the youngsters' capability and the help that AI can provide. Right. So I think it will be the right place to be there. So I would suggest everyone who is in business or a startup to go and attend the same. तो अचीरा जी, कुछ आप भी बताइए इस कॉन्क्लेव के बारे में। हाँ ज़रूर। बिस्टॉक से ये इनिशिएटिव मतलब जो मैंने ली है वो मैं अकेली नहीं ली है, वो रिमझिम रे फ्रॉम Spottle.ai एंड वावो AI, उन्होंने फर्स्ट ये प्रपोजल दी थी मुझे कि एक AI सेशन किया जाए। तो उसके साथ फिर उसके ऊपर काम करते करते मैंने इसको जोड़ दी कि AI पैनल भी रखना है, और उसके साथ ब्रांडिंग AI के थ्रू कैसे किया जाए, क्लाउड विद AI, वो जो DPDP एक्ट हम लोग के बीच आ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बात करना, और अकाउंट्स जो अभी AI के थ्रू लोग काम करेंगे उसके ऊपर, तो वो भी कुछ डिस्कस होगा। और वेस्ट बंगाल आज किधर है और आगे कितना आगे बढ़ सकता है, तो उसके ऊपर रोहित जी आएंगे, बताएंगे। तो ये सारे मिला के एंड पैनल्स जो सर मॉडरेटर रहेंगे, तो उधर में हम लोग मतलब ला रहे हैं। एक सेकंड मैं बता रही हूँ, जो हम लोग का पैनल रहेगा उसका टॉपिक ये रहेगा कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट ऑटोमेशन स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस। देवाशीष सर खुद इसको सिलेक्ट किया है ये टॉपिक, और पैनलिस्ट आ रहे हैं डॉक्टर इंद्रनील मित्र, जो डॉक्टरेट किया हुआ है AI के ऊपर, अभी PwC का एडवाइजर, डॉक्टरेट अनिंदिता देशरकर, मिस्टर अभिजीत पाल, मिस्टर अंशुमान भट्टाचार्य एंड सुप्रिया चौधरी। अंशुमानदा इज वर्किंग ऑन रिस्पॉन्सिबल AI एंड एजेंटिक AI के ऊपर थोड़ा बताएंगे अभिजीत सर। तो पैनल जो है उसमें बिजनेस ओनर्स जो भी आएंगे इस कॉन्क्लेव में, उनको एटलीस्ट एक अवेयरनेस होगा कि AI के थ्रू क्या क्या बिजनेस ओनर्स को हेल्प हो सकता है। जो अभी तक मैनुअली हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे टाइम सेव होगा, कैसे कॉस्ट सेव होगा, और बिजनेस और भी आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बिजनेस के करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उसके साथ AI का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन पे जो भी प्रोफेशनल्स हैं, CA बोलिए, CS बोलिए, लॉयर्स, सबको AI सिखाया जा रहा है, तो बिजनेस ओनर्स क्यों पीछे पड़ जाए। तो इसीलिए मैं और रिमझिम दीप बोथ ये प्लान किए। अभी इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ईवो को, लक्स जी को,
बोले थे कि हम लोग अगर कोलाबोरेशन में आके ईवो जो प्लेटफॉर्म है, बिस्टॉक प्लेटफॉर्म है, फाइड एक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग तीनों चार प्लेटफॉर्म एक साथ होके, अगर हम लोगों के जो भी मेंबर्स हैं सब कोई बिजनेस ओनर्स हैं, तो हम लोग एक साथ होके कोलाबोरेशन में आके अगर हम लोग के जो मेंबर्स हैं तो उनको अगर सिखाया जाए कि एआई कैसे उनको हेल्प कर पाएंगे, टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगा, कैसे एआई मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर रिसर्च करते हैं, उस मतलब सारा जो भी आप बनवाना चाहते हैं कि ठीक है एक ईमेल लिखना है वो जल्दी से हो जाए, एक प्रेजेंटेशन बनाना है वो आप एआई के थ्रू 5 to 10 मिनट्स में एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये सब आज के दिन बिजनेस ओनर्स को सीखना चाहिए, यही हम लोग का एक ओपिनियन है, तो इसीलिए वही एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जा रहा है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों के लिए। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि ईवो भी हम लोग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फाइट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग कोलैबोरेशन में आके एक मैसेज भी दे सकते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म्स या ग्रुप्स कोलैबोरेशन में आके कुछ काम एक साथ कर पाते हैं तो बिजनेस ओनर्स भी एक साथ आके कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग का वेस्ट बंगाल और भी आगे बढ़ सकता है, क्यों हम लोग पीछे बढ़ जाए, क्योंकि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई सब कोई बहुत आगे बढ़ चुका है एआई को लेकर, बट वेस्ट बंगाल इज नॉट अवेयर अबाउट एआई। कोलकाता के लोग बहुत ही पीछे हैं, कुछ लोग मतलब 1% 2% लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो कुछ देखेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर रहे हैं एआई रोबोट से, AI वो नहीं है, ठीक है। तो अगर 1% 2% लोग यूज़ कर रहे हैं तो 100% क्यों नहीं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें टूल्स सिखाया जाएगा, रिमझिम दी खुद वो टूल्स सिखाएंगे, उसके साथ एक पैनल रहेगा ब्रांडिंग के साथ एआई कैसे जुड़ रहा है उसमें, उसके ऊपर शुभम जी बात करेंगे, अतीशदा बात करेंगे कि क्लाउड विद एआई, जीएसटी अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे सीए अमित जी, और रोहित जी बताएंगे कि वेस्ट बंगाल आज कहाँ है और कितना डेवलपमेंट आने वाला है वेस्ट बंगाल में। तो ये सारा चीज़ मिला के विथ ओपन नेटवर्किंग बहुत 3-4 हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग के मेंबर्स के लिए प्लीज़ आ जाइए, ओपन नेटवर्किंग के टाइम बिजनेस भी थोड़ा बहुत जनरेट होगा। और ये भी एक बात है जो मैं बोलना चाहूँगी, इसमें ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम लोग गेस्ट सिद्धार्थ सर को ला रहे हैं, सिद्धार्थ जी आ रहे हैं गेस्ट बन के, और उसके साथ डॉक्टर राजीव शील आ रहे हैं। वो दिसंबर में एआई के ऊपर एक सेशन किए थे डॉक्टर्स के लिए। हाँ, डॉक्टर राजीव शील ने वो प्लान किए थे बंधु आकाशा के थ्रू, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। तो वो लोग डॉक्टर्स के लिए एआई कैसे डॉक्टर्स को हेल्प करेंगे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ। डॉक्टर कुणाल सरकार आए थे, डॉक्टर प्रणव दास गुप्ता आए थे। तो अभी इतने जन को तो मैं अप्रोच नहीं कर पाई, बट डॉक्टर राजीव शील आ रहे हैं, सुजाता चैटर्जी आ रहे हैं, इंद्रजीत लाहिरी आ रहे हैं, और हम लोग का बहुत ही प्यारा सुशील पोद्दार जी भी आ रहे हैं, CWPTA का प्रेसिडेंट। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरी बिजनेस ओनर्स टू complete their registrations and participate in this conclave. सो अजीरा जी मुझे बताइए कि रजिस्ट्रेशंस के लिए क्या डायरेक्टली आपको आपसे कनेक्ट करना होगा या दे कैन जस्ट ड्रॉप इन एट द लोकेशन? लिंक बायो में दिया गया है दोस्तों, जरूर फॉलो करें रजिस्ट्रेशन के लिए। सोशल मीडिया में हम लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, ईवो के थ्रू सर्कुलेट होगा, फाइट के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, बिस्टॉक के थ्रू भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो और भी 3-4 प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, ओके, तो वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली बिजनेस ओनर्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन लिंक, एक फॉर्म फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है आपने, माँ दुर्गा की तरह रोल लेके आप इसको कर रही हैं और सबको जोड़ रही हैं, बहुत ही अच्छा है। और बंगाल का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, अब सिर्फ एआई नहीं, क्वांटम एआई में भी बंगाल आगे जाने वाला है। हाँ, एकदम, जैसा कि मैंने आपको बताया हाँ। था। तो इससे हम लोग विजन एक लेके चलते हैं कि लाइक बिटवीन नवंबर दिसंबर विल बी डूइंग अ मोर ग्रैंड इवेंट विद 1000 of peoples
एंड एआई समिट वेस्ट बंगाल 2026 ऐसा कुछ हाँ हम लोग एकदम। करें। अगर इसमें हम लोग 150 बिजनेस ओनर्स या 180 बिजनेस ओनर्स को अवार्ड कर पाए ना, तो हम लोग वो जो सबमिट करने जा रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स, और दिसंबर में भी Yeah. अगर हम लोग करेंगे, हाँ 6 मंथ्स ही हुआ, तो वो और भी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हम लोग ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें अगर 150 बिजनेस ओनर्स आएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगा, तो हम लोग ज़रूर उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस ला पाएंगे। हाँ, वेस्ट बंगाल एआई समिट हम लोग कर पाएंगे। तो सीट्स फुल हो रहे हैं, तुरंत लिंक दिया है बायो में, रजिस्टर करिए और अपना सीट बुक करिए, क्योंकि गैदरिंग मैक्सिमम 180 के ऊपर जा नहीं सकता, पावर रखने की फिर जगह नहीं मिलेगी आपको। लवन्या, So before we all come to the end, Dada, I would I would like you to say some thing to our viewers. Yes, कि I हमारे जो have something in mind Yeah. after listening to Yeah, all of please. you, and from my experience, if we are feeling very sad about Kolkata, Yes. कि हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, हाँ, हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि हम लोग का बच्चे लोग कोई आज कलकत्ता में है नहीं. When I she agree was with that. telling that Bombay is ahead, Bangalore is ahead, Hyderabad is ahead Yeah. with AI and Kolkata is not, please don't forget it is our children who are there. Yeah. If you Correct. can import your kids back into Bengal, that will be the biggest success story for the state. right. Other Biggest states are lesson. using our brains. Yes. It is our job absolutely. to bring them back. I want to add a story. I was in Bangalore for 3 years. I came back to Kolkata, and people were saying, "तुम बैंगलोर छोड़ के कलकत्ता क्यों आ गए?" लोग कलकत्ता छोड़ के बैंगलोर जाते हैं. You came back. हम बोला कलकत्ता को बेटर करने के लिए आया हूँ वापस में, बेटर देन बैंगलोर. एकदम सही बात। तो ये जज्बा हर एक यूथ को रखना पड़ेगा, और बंगाल में अपॉर्चुनिटी है दोस्तों. अगर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा. आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा. एकदम, और हम लोग एक साथ मिलके करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी हो सकता है। We Right. can make a massive movement. we are on एकदम, Bharat और सर Tennis हम लोग के movement. साथ हैं, उसका एक्सपीरियंस हम लोग के साथ है, तो आई थिंक कि जो हम लोग और भी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो न्यू जनरेशन्स है, सर से ही सीखना है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका हार्ड वर्किंग, जो सर ने अभी बोला कि जे एकदम सही बात है कि सबको ही ना, आज का जो भी न्यू जनरेशन्स है, बहुत सारा टाइम मोबाइल पे वो काम करते हैं। तो ठीक है, यही सीख लीजिए, मोबाइल के थ्रू काम कीजिए, बट हार्ड वर्किंग उसमें भी जोड़ दीजिए, और सर की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करना है। Sir is not the perfect example, if I may say. नहीं सर, आप आप देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। Examples. नहीं आप सोचते हो वैसा, सर लेकिन जैसे मेरी सोच भौजूरी मन, अलग है. नहीं सर, There are far greater people than us, and यू वर वन ऑफ देम सर। personally I don't take it that way. There is much to learn, and I'm willing to learn, which is why I will attend the conclave. मेरे को कुछ पता नहीं है, इसीलिए इंटरेस्टिंग और ज़्यादा है, जैसे मैंने आगे भी पीछे भी बताया था. और एक कुछ बोलना है, खैर छोड़िए. मैं क्रिकेट ला रहा था इसमें. सुनील गावस्कर भी क्रिकेट का फंडामेंटल्स एंड द स्ट्रेंथ्स दिखा के गया है. Anyone who goes through his career will know who is greater, whether it is Tendulkar or whether it is Sunil Gavaskar. People who understand cricket will give you the answer. It is Sunil Gavaskar. Yeah, correct. He did not get, to play 20 extra test matches to reach a milestone, which was accorded to Tendulkar. So I would say, career-wise, Tendulkar was lucky. Virat is a far greater Yeah. batsman. What I want to tell you in the context of this conclave and what we have discussed, आप बोल रहे थे ना, I will make it, my experience will make a difference. Yes, it will. If they take it as a data like Sunil Gavaskar, our children can become a Suryavanshi who's ruling cricket now. एकदम सही सर। आप लोगों का एक्सपीरियंस ही तो रिसर्च वर्क अभी बनेगा ना। जो लोग अभी बिजनेस पे आ रहे हैं, तो वो जो जब रिसर्च करेंगे तो आप ही के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो सर आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही वैल्यूएबल। दादा को इंक्लूड कीजिए इसमें. डोंट फॉरगेट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैन. तो सर जाते जाते पॉडकास्ट के एंड में कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को?
देखिए मैं पॉडकास्ट वगैरह में तो कभी नहीं रहा. These are initial days of my Okay. platforms like you are giving me space. I'm grateful for that. But I think it is the best way of passing on a message because it will reach हर एक आदमी का phone पे it will be Correct. available. So if it is pitched at the right clientele, it reaches the right chords. आज You're आप there to win. आज आप इमोशनल भी हो गए थे अपने स्टोरी को बताते I हुए. always become emotional. I think everyone will. Right. Anybody with a background which was will bit sheer blood, sweat and tears. And अगर आप 18 hours a day 22 साल से खटोगे तो 22 साल तो खैर नहीं, कोविड तक, बिफोर कोविड तक it was 14, 15, 16, nothing made a difference to me. I used to be home for 4 hours in a day. Great, वैसे ही बिजनेस बिल्ड हुई है. तो दोस्तों हम एंड करते हैं ये पॉडकास्ट. चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं, और ज़रूर इस पॉडकास्ट को पूरा देखें क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ स्टोरी को बदल सकता है. थैंक यू. माई सेल्फ लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल एंड द अदर होस्ट लवन्या जायसवाल साइनिंग ऑफ. इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो. जय हिंद, जय भारत.